ابھی حال ہی میں ایک گفتگو ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اسلام اور قرآن یہ سب انسانوں کی اپنی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں معاذ اللہ. یہ ایسا کوئی مذہب نہیں, ایسا کوئی قانون نہیں, یہ سب اپنا دھندا ہے چلانے کے لیے, پیٹ پالنے کے لیے لوگوں نے ویسے سب من گھڑت چیزیں تیار کر لی ہے. یہ بکواس. اور کہا کہ ہم اچھا کماتے ہیں, ہم اچھا کھاتے ہیں, اب ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے. ہم نے کہا سول مذہب تو اس آب حیات کا نام ہے کہ بغیر اس قطرے کے دنیا میں کوئی زندہ بھی نہیں رہ سکتا. تم سمجھتے ہو کہ مذہب کو چھوڑنے سے تمہاری پہچان باقی رہ جائے گی, یہ خام خیالی ہے صاحب. آج اس دور میں جو نئی نسلیں تیزی کے ساتھ مذہب سے بیزار ہوتی جا رہی ہے, اور اچھا زبردستی یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ حیضہ نکلا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو وی آئی پی کہہ رہے ہیں, مذہب چھوڑ کر وی آئی پی کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا وہ آج تک دنیا نے لگتا ہے وی آئی پی کا معنی ہی نہیں سمجھا. بھئی کھڑے ہو کر گلی کے موڑ پر پیشاب کر رہا ہے کتوں کی طرح اور لکھ رہا ہے وی آئی پی. 50-50 گرام پیشاب پینٹ میں لیے گھوم رہا ہے, لکھ رہا ہے وی آئی پی. گھر میں مہنگے بکرے کے علاوہ 1.5 لاکھ کا کتا پالے بیٹھا ہے, کہہ رہا ہے وی آئی پی. ماں بہن بہو بیٹیوں کی تمیز نگاہوں سے اڑ گئی, ختم ہو گئی, اور کہہ رہا ہے وی آئی پی. ہم نے کہا اگر ایسے ذلیلوں کو وی آئی پی کہا جائے تو پھر وی آئی پی کے لفظ کی توہین ہوگی. ہم نے کہا سنو, دنیا میں صرف ایک ہی وی آئی پی ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ و رسول یاد آ جائے, اسی مومن کو وی آئی پی کہا جاتا ہے. ہم نے کہا مذہب چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا. یہ مذہب اچھا, ایک تو اس کو رسم میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. جیسے رسم یہ ہوتا ہے کہ کرنا بھی ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں, اور کرنا ضروری ہے, اس کو دانتوں سے پکڑ کے رکھا ہے. جیسے اب ادھر جلال پور میں کیا ماحول چل رہا ہے, تو دولہے کو جیسے نہلایا جاتا ہے تو ہمارے طرف بیل, جس میں 2 بیل جوتے جاتے تھے, وہ ہوتا نہیں تھا لکڑے کا, تو اس پر کھڑا کر کے دولہے کو نہلاتے. بہت جگہوں پر ہے, اسی پر کھڑا کر کے دولہے کو نہلاتے. اور جب نہا لے گا تو پھر وہ پیر جو ہے پہلے زمین پر نہیں رکھے گا, مٹی کے برتن پہ رکھے گا, اور تڑاک سے پھوڑے گا تو سب تالی بجائیں گے کہ اس کا غسل کامیاب ہو گیا. مطلب رسم ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں. رسم ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں. جیسے گھوڑے گدھا بیٹھنا رسم ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں. کئی جگہ تو شکایتیں آئی کہ گھوڑے پر بیٹھ کر کنواں گھما رہے تھے, اور کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ دولہا دوبارہ غسل کر رہا ہے, مطلب کنویں میں گر گیا. ہاں, دولہا صحرے کے ساتھ دوبارہ غسل کر رہا ہے, پتا لگا کہ گھوڑا بکا اور دولہا کنویں میں چلا گیا. تو رسم ہے, فائدہ نہیں. تو یہ بہت ساری رسمیں ایسے ہیں, جیسے ڈی جے بھانگڑا 3-3 کلومیٹر تک ناچے, فیکٹور تک نکل آیا منہ سے, اور جوتے سے مرے چوہے کی بدبو آنے لگی. رسم ہے, فائدہ کچھ نہیں. کئی لوگ تو نالیوں سے برآمد کیے گئے بارات گزرنے کے بعد, پتا لگا کہ نوٹ لوٹنے کے چکر میں یہ لوگ اندر تک چلے گئے تھے. تو رسم ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں. تو دنیا نے اس کو بھی, یعنی مذہب کو بھی معاذ اللہ رسم میں ڈالنے کی کوشش کی, اور کہا یہ مولوی ملاؤں کی کہانی ہے, باقی تم تو وی آئی پی ہو. کرتامہ پیجامہ پہننا یہ مولوی ملا کا معاملہ ہے, تم نہیں پہن سکتے, تم تو وی آئی پی ہو. ٹوپی لگانا, داڑھی رکھنا یہ مولوی ملا کا کام ہے, ایک رسم ہے, ایسے کرنا ہے, باقی اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تم تو اسٹینڈرڈ ہو, تم اس چیز سے دور رہو. تو مذہب کو رسم میں ڈال دیا. قرآن پڑھنا ایک رسم ہے جو مولوی ملا پڑھ رہے, مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, باقی تمہارے بچے کو پڑھنا اور پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں, APPLE ایپل, ایپل مانے انار, یہ اپنے بچے کو پڑھانا. ہاں, CAT کیٹ مانے کتا, یہ اپنے بچے کو پڑھانا. DOG ڈاگ مانے بلی, یہ اپنے بچوں کو پڑھانا. کیوں ہم صحیح ترجمہ بتائیں, کیوں صحیح ترجمہ ہم بتائیں؟ ہمارے اوپر انگریزوں کا احسان موجود ہے.
نہیں بتائیں گے، ایک بھی نہیں بتائیں گے، ایک بھی نہیں بتائیں گے. ہزاروں انگریزی ہم بولیں گے لیکن سب غلط ہے. اچھا، اس کو لوگوں نے اسٹینڈرڈ کر دیا. جو وی آئی پی بنتا ہے وہ گھر میں بھی انگریزی ہی پھونکنے کی کوشش کرتا ہے. مائی سن پلیز مطلب یہ عجب ماحول، عجب عجیب سے زبان نکال کر کے یہ وہ، تو لوگ اس کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، اس کو وی آئی پی میں شمار کرتے ہیں. ہم نے کہا سنو، APPLE ایپل سے شروع ہو کر کے باتھ روم کے ٹیشو پیپر تک جو اینڈ ہو جائے اسے انگریزی کہتے ہیں، اور بسم اللہ سے شروع ہو کر جنت تک جو پہنچا دے اسے قرآن کہتے ہیں. وی آئی پی کہا بھائی، جو انگریزی بولے وی آئی پی، جو انگریزی لکھے وی آئی پی. ہم نے کہا کیا وی آئی پی؟ یہاں سے LKG BKG نرسری کا سفر کرنے سے لے کر ہائی اسکول انٹر تک پہنچنے تک اس کے خرچ کو اگر جوڑا جائے، بیگ کا خرچ الگ ہے، کتابوں کا خرچ الگ ہے، کاپیوں کا الگ، لنچ کا الگ، فیس کا الگ، آفس کا الگ، بلڈنگ مینٹیننس کا الگ، تماہی چھماہی سالانہ اگزام کا الگ، اور نچانے کا 600 روپیہ الگ. کہ ہم تمہارے بچوں کو نچائیں گے، تمہاری بیٹی کو اسکول میں نچائیں گے، ڈانس فنکشن رکھے ہیں اس میں 600 روپیہ دیجئے تو ہم تمہارے بچوں کو نچا دیں. تو ہم نے بھی دے دیا 600 روپیہ، لو نچا دو. تو اس نے نچا دیا، ہاں نچا دیا. یہ حرکتیں کر کے وہ وہاں سے اگر LKG BKG نرسری سے اگر جوڑیں تو انٹر تک تقریباً اگر نارمل اسکول میں پڑھاتا ہے تو 6 سے 7 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. 6-7 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد کیا بدل گیا؟ وی آئی پی کیا بن کر آیا؟ گھر میں اگر ماں باپ کی ڈھلائی سے بچپن میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا تو انٹر کی ڈگری لے کر جب لوٹا تب وہ کھڑے ہو کر کر رہا تھا. تو ہم نے کہا کیا بدل گیا اس میں؟ بھائی 6-7 سال کی عمر میں تھا، یہاں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا گھر میں، جب لوٹا تب بھی گلی کے موڑ پر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا. کیا بدلا؟ نرسری سے لے کر کے انٹر کی ڈگری لینے تک جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے اگر 2 ورق بھی زبانی سنا دے تو میں غلامی کروں گا. خرچ کیا 7 لاکھ، یادداشت جو ہے 0 پوائنٹ، تہذیب 0 پوائنٹ، تمدن 0 پوائنٹ، اخلاقیات 0 پوائنٹ. ٹیچر کو تماچے مار کر کے انٹر کی ڈگری لے کر بیٹھا ہے، یہ سب 0 پوائنٹ. لیکن تم مدرسوں کا اگر جائزہ لے لو، خرچ 0 ہے. تہذیب ایسی ہے کہ آیا تھا 2 مہینے بعد گھر واپس گیا بچہ تو جا کر ماں کا ہاتھ چوم لیا، باپ کو سلام کیا اور پیشاب کر کے پانی بھی لیا. پاخانہ پیشاب کا بھی طریقہ معلوم، دعا سلام کا بھی طریقہ معلوم. خرچ 0 پوائنٹ، اور وہی 3 سال گزار دیے، خرچ 0 ہے. لیکن جب سنائے گا تو مصلی پر کھڑے ہو کر کے 6666 آیتوں کو زبانی سنائے گا، جسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے. بسم اللہ کی با سے لے کر کے والناس کی سین تک زبانی سنائے گا، جس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے. اور صرف زبانی ایسے نہیں سنائے گا، کتنی آیتیں ہیں یہ بھی بتائے گا، آیت نمبر کیا ہے یہ بھی بتائے گا، رکوعات کتنے ہیں وہ بھی بتائے گا، مشابہات کتنے ہیں وہ بھی بتائے گا، محکمات کتنے ہیں وہ بھی بتائے گا، وقف جائز کیا ہے وہ بھی بتائے گا، وقف لازم کیا ہے وہ بھی بتائے گا، وقف مرکز کیا ہے وہ بھی بتائے گا. یہ تمام تر تمیز کے ساتھ اگر مکمل 30 پاروں کو کوئی سنا دے، خرچ 0 اور حاصل میں جنت کی زبان اس نے زبانی یاد کر رکھی ہے، رب کے کلام کو زبانی یاد کر رکھا ہے. تو وی آئی پی یہ ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا وی آئی پی نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مذہب اسلام، عظمت قرآن مقدس، علماء اہل سنت.
जिंदा बाज। तो इसको रस्म में डालना चाहा। भाई दुनिया कब चाहेगी कि तुम तरक्की करो? कभी नहीं चाहेगी। जो तुम करते हो उसके उल्टे ही दुनिया बताकर तुमको बताती यही करो तो तरक्की है। जैसे पहले आज के 10-20 साल पहले सुकून से सब जमीन पहिया, हमारे तरफ तो पैरा कहा धान से जो निकलना है पैरा, सुकून से सब पैरा आए तो सब बार बैठ जाते हो, मट्टी के बर्तन लगत रहा। एक आदमी पानी लेकर के बच्चे चाहे वो हाथ धुल लो, सबको हाथ धुलाता था, और एक आदमी लेकर के सालन सबको लगाता था और फिर बोलता था पंचो साहबो बिस्मिल्लाह। लोगों को ये तहजीब तुम्हारी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, हाथ धुल के कैसे खाओगे, खाने का जायका खराब हो जाएगा, मैं हाथ धुल के कैसे खाओगे? तो उन्होंने कहा कि पैरा छोड़ो, हम बताते हैं, कुर्सी ले लो। कुर्सी पर आ गए, तब वो कुछ सिस्टम बाकी था, उनके पेट में दर्द था कि अभी भी ये मजहब से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दुनिया जब तक इंसान को कुत्ते की शक्ल में नहीं देख लेती है उसको चैन नहीं आता, क्योंकि उसके साथ इब्लीस काम कर रहा है। तो कहा कि अभी भी कुछ तहजीब बाकी है। तो कहा बेकार है, जो कुर्सी बैठे तो बेकार, लेकिन कौन निकला हो, कुर्सी बैठे जो चल ना पाओ, कुर्सी बैठे जो मोटा हो, कुर्सी बैठे हटाओ, कुर्सी स्टैंडिंग करो। और ये क्या, एक कोटी दो कोटी ये गरीबों का तरीका, फकीरों का तरीका। अपने हाथ से प्लेट उठाओ, अपने हाथ से। अब जो जानवर की डोरी ढीली की गई, प्लेट उठाया और पहले भूख में, जानते हैं कि आदमी पहले भूख में सोचता है कि हम पूरा बकरा कच्चा निकल जाए, पहली भूख में। इसका अंदाजा अगर लगाना है तो आप रमजान में लगा सकते हो। रमजान में आदमी बैठता, दस्तरखान पे अनवा अकसाम की चीजें चुनी हुई हैं और लिए तो है खजूर दिखावे के लिए, लेकिन निगाह ऐसी है कि जरा भी माइक पे टुन की हरकत आए तो हमला किस साइड से होना है, स्टार्टिंग कहां से करनी है, ये पूरी नीयत बनी हुई। सोचता है सब खा लेंगे, लेकिन होता नहीं है। क्या खाएगा भाई? चंद खजूर खाया, एक दो नमकीन खाया, 2-4 गिलास रूह अफ़ज़ा पिया, सादा पानी पिया, गमूड़ा हो गया, फिर उधर नमाज का टाइम था, चला गया, सब वैसे खड़ा। कौन कितना ले जाएगा कहाँ? तो पहली भूख में प्लेट उठाया। अब उसका नतीजा क्या निकला? हमने साहब अमीरों के दावतों में कूड़ेदान में उतने खाने पड़े देखे हैं कि अगर उनकी कीमत जोड़ दी जाए तो एक गरीब की बेटी के हाथ फूले हुए। ये दुनिया ने पहुंचा दिया। एक आदमी सुकून से खाना देता था, जो जरूरत होती थी उतनी मिल जाती थी, बस बिस्मिल्लाह किए, एक रोटी आध रोटी खाए, चावल लिए, अपना मस्ती के साथ हाथ धुले, मुंह पोछे, खड़े हो गए कि भाई पेट भर गया, बस इतने तो है ना। अब उसने जब प्लेट लिया तो फिर फ्राई की जितनी किस्में थी सब प्लेट में, चपाती की जितनी किस्में थी सब प्लेट में, बिरयानी की जितनी किस्में थी सब प्लेट में, सालन की जितनी किस्में थी सब प्लेट में, सलाद है, पापड़ है, रायता है, एक ही प्लेट में। जो मुसाफिर सवार हुए हैं, फिर ये लेकर निकलता है तो लगता है कि खाना नहीं, कारगिल से लाश लेकर निकल रहा है। हट जाने टपक जाएगा। फिर जा करके थोड़ी सी फ्राई मारा, यूं नोच के फेंक दिया, बेकार, कच्चा बना, नहीं ठीक है। एक दो चपाती लिया, फेंक दिया, नहीं ठीक है। ऐसे फेंक करके कूड़ेदान में ढेर लगा था, क्योंकि दुनिया को तुम्हें बैठ करके तुम खाते तो तुम इंसान कहे जा रहे थे। अब जो काम कर रहे हो उसमें वीआईपी का लेबल लगा दिया है, लेकिन किसी बैल भैंस से तुम्हारी आदतें अलग नहीं हो रही हैं। वो सब उसी के हिसाब से है कि बैल भैंस भी मुकम्मल पेट में सब कुछ दाखिल करना चाहती है, हालांकि हो नहीं पाता है। ये सारी चीजें करके नबी की सुन्नतों से दूर कर दिया। सर ढका हुआ था, नंगा कर दिया, हाथ धुलते थे। अब हाथ का मामला ये है, मई जून के महीने के बारात के जो मुसाफिर है वो निकलते हैं, हाथ इतने दिन देर में कितनी जगहों पर हिजरत करता है किसी को मालूम नहीं। हाँ, कहाँ गया हाथ? कहीं नाक पे पहुंच गया, कहीं कान पे पहुंच गया, कहीं बगल में पहुंच गया, कहीं और कहीं सरायत कर गया। ये सारा सिस्टम बिल्कुल यह कीटाणु, बैक्टीरिया, जम सब तैयार है और ले जाके बिरयानी में मिक्स। ये है सुन्नत से दूरी का तरीका। अब वहां से खड़े होकर कहे हमें मजहब की जरूरत नहीं है,
ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کہا سنو، جنہوں نے مذہبوں سے بیزاری اختیار کی، جنہوں نے شریعت سے بیزاری اختیار کی اور اپنے آپ کو وی آئی پی کہلوایا، ترقی یافتہ کہلوایا، ان کی زندگی کی جانچ کر لو. وہ چاہے چائنا ہو، لندن ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، جہاں مذہب کو کنارے مکھی کی طرح نکال کر پھینکا گیا اور آزادی کا نعرہ لگا کر جینے لگے، آج ان کے دسترخوانوں پر کتے بھی پہنچ گئے، چھچندر بھی پہنچ گئے، سانپ گوجر بھی پہنچ گئے، اور جو ہے نہ جانے کتنی غلیظ چیزیں دسترخوانوں پر پہنچی. باپ بیٹی کو لیے گھوم رہا ہے، بھائی بہن کو لیے گھوم رہا ہے، ننگے کپڑوں کے بغیر سمندر کے کنارے پڑے ہیں، زناکاریوں کا بازار گرم ہے. یہ ہے مذہب کے چھوٹنے کا عذاب جو دنیا میں ہے. آخرت میں کیا ہوگا وہ تو رب جانے، لیکن آج اگر تمہارے بدن پر یہ لباس شریفانہ موجود ہے، یہ دین شیخ پٹھان صدیقی کی نہیں، دین مذہب اسلام کی ہے. اگر گھر میں بیٹی بیٹی کے مقام پر ہے، بہن بہن کے مقام پر ہے، بیوی بیوی کے مقام پر ہے، ماں ماں کے مقام پر ہے، اگر سب کی عزتیں گھر میں محفوظ ہے تو یہ دین سوسائٹی کی نہیں، دین مذہب اسلام کی ہے. اگر دسترخوانوں پر حلال کھانے پہنچ رہے ہیں تو یہ دین مذہب اسلام کی ہے. اگر ہاتھ دھل کر کے لقمے بسم اللہ پڑھ کر پیٹ میں داخل ہو رہے ہیں تو دین مذہب اسلام کی ہے. یعنی لباس سے لے کر کے ایک مومن کے کندھے پر مرنے کے بعد بھی کلمے کے ورد اور درود کے نغمے کے ساتھ اگر مومنوں کے کندھوں پر تیرتا ہوا ایک مرے ہوئے کا جنازہ عزت سے کپڑا پہن کر قبر میں جا کر کے خوشبو کے ساتھ لیٹ جاتا ہے تو یہ دین مذہب اسلام کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مذہب اسلام، عظمت مذہب اسلام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی کہانی بغیر اسکیم کے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اسکیمیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ اچانک یہ چیزیں نمودار ہوتی ہیں، اس پر پلاننگ کی جاتی ہے. بھائی ہندوستان میں جب پلاننگ کی گئی تھی بہادر شاہ ظفر کے دور میں، بہادر شاہ ظفر ہی کے دور میں نا انگریز آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگا تھا، اور پھر ایک دن انہی کے بیٹوں کا سر کاٹ کر کے سامنے رکھ دیا. تو یہ پلاننگ، اب جب یہ ہاتھ آنے کے بعد ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد پھر کیا پلاننگ کی گئی؟ کیونکہ مسلمانوں سے چھینی ہوئی حکومت تھی اور انگریز یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ مسلمان پھر آ کر کے ہم سے چھین کر برسرے اقتدار ہو جائے. تو کیا کیا گیا؟ ایک چیز یاد رکھیں میرے بھائی، کسی قوم کو مارنے کے لیے اس کے عقیدے کو مارنا ضروری ہے. جب تک عقیدہ نہیں مرے گا وہ قوم مر نہیں سکتی، وہ قوم مر نہیں سکتی. تو تمہیں مارنے کے لیے تم پر حملہ نہیں کیا گیا، کیونکہ بھائی ڈائریکٹ اگر سب کو قتل کر دیا جائے تو حکومت کس پر کی جائے گی؟ حکومت کے لیے بھی تو لوگوں کا ہونا ضروری ہے. بھائی سب کو مار کے اکیلے بادشاہ کہے ہم بادشاہ، کس کے بادشاہ ہیں؟ مردوں کے بادشاہ. تو قوم کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن قوم کا مردہ رہنا بھی ضروری ہے. اگر زندہ رہے گی تو اپنے حق کو حاصل کر لے گی، اگر زندہ رہے گی تو اپنا حق چھین کر لے گی. تو قوم کا رہنا بھی ضروری ہے تاکہ حکومت ہو سکے، ہمارے درباروں میں یہ نوکر بن کر کھڑے بھی رہ سکے. اور مردہ بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ زندہ رہیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی نسل کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہوگا اور اپنا حق ضرور مانگ لے گا. بھائی یہی تو ہوا نا، 22,000 نے سب کچھ ختم کرنے کے بعد، لیکن وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ہم نے سب کچھ قتل کر دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا.
لیکن یزیدی بھول گئے حسین جسے راز اپنا دے کر خیمے کے اندر سے نکل کر گئے تھے وہ زین العابدین گھوم رہے تھے، وہ زین العابدین موجود تھے۔ اب وہاں سے انہیں تو یہ تھا کہ بیمار ہے، کیا ہو پائے گا، ان سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ یزیدیوں کو کیا معلوم تھا کہ حسین جو آج نیزے پر خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس خطبے کو قیامت تک کے لیے کوئی زندہ رکھے گا تو وہ زین العابدین ہیں۔ آج اگر پوری دنیا میں سیدوں کی نسل موجود ہے تو وہ صدقہ امام زین العابدین کا، امام زین العابدین کا ہے۔ تو قوم کی فکر کو مارنا ضروری ہے، اس کے عقیدے کو مارنا ضروری ہے، تاکہ قوم مردہ بن کر رہے، مردہ بن کر رہے۔ بہت بڑی مثال خالی کر کے بہت بڑی مثال، بہت بڑی مثال آ گئی۔ آپ بھی سنیے گا، کام کی بات ہے، اکتائیے گا تو ہم کو بتا دیجیے گا، کیونکہ ہماری عادت کچھ الگ ہے، ہم گھڑی وڑی پہنتے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی مثال، یہ یاد رکھیے گا، زندگی میں کام آئے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایران فتح ہوا تو پہلی بار زندگی میں آپ کو ہاتھی کی سواری کروائی۔ ہاتھی، عرب والے ہاتھی واتی نہیں دیکھے تھے، اونٹ اور گھوڑے کا معاملہ چل رہا تھا۔ پہلی بار جب صحابہ نے ہاتھی دیکھا تو ان کے گھوڑے خودے بھاگ گئے، سب ہاتھی دیکھ کے ہی کون جانور سب لمبا لمبا لگا رہا، یہ سب عنوان سب ہی جو ہے سوٹ کی طرح، تو وہ سب چوک کے بھی رکھ کے بھاگنے لگے۔ تو یہ چیز مطلب نہیں تھی عرب میں۔ تو جب فتح ہوا تو حضرت فاروق اعظم کو خوشی میں کہ سرکار ایک نئی سواری ہاتھ آ گئی، نئی سواری ہاتھ آ گئی، سرکار آپ اس پر تشریف رکھیں، اس کو ہاتھی کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھی پر بیٹھ گئے۔ سنیے گا، بہت کام کی بات آ گئی ہے، زندگی بھر یہ جملہ کامیاب کام آئے گا انشاءاللہ۔ پشت پر بیٹھے، ہاتھی کے پشت پر بیٹھے، ارشاد فرمایا، بیٹھ تو گئے ہیں، کافی اونچی ہے بھائی، گھوڑے کا ڈبل ہے، گھوڑے کا ڈبل ہے، کافی اونچی ہے، لگام تو لاؤ ہاتھ میں، اور کیجیے گا، لگام تو لاؤ ہاتھ میں، کم سے کم بیٹھے تو لگام تو پکڑے، نہیں ادھر ادھر بھاگے تو تھامے گا۔ وہ جو ہاتھی چلانے والا تھا، وہ ہاتھی بان کیا کہتے ہیں، تیلبان، تیلبان کہتے ہیں، تیلوان، ارے اور کچھ کہا تھا، تو پلوان بھی کہو کہا، پلوان بھی کہتے ہیں، پلوان و سلمہ جو ہے کثرت سے کہا بھی گزر گئے، وہ ہے پیل بان۔ ہاں، پیل بان کے یہاں سبھی آسان طرف سے پلوان کہتے، پیل بان کو کثرت سے کہتے جو ہے پلوان، پہلے پلوان کہیں پھر جو ہے پلوان کہنے کا مطلب آ کا بھی بدل کے پاس ہے تبدیل۔ تو بیٹھے تو آپ نے لگام مانگا، کہا کہ لگام تو لاؤ بھائی۔ تو وہ جو فیل بان تھا کہا کہ سرکار اس کو تو ہم چلائیں گے۔ غور کیجئے گا، بہت بڑی حکمت کی بات ہے، کیا کہا، اس کو تو ہم چلائیں گے، آپ بیٹھیے، صرف اس کا لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، لگام نہیں ہوتا ہے، بیٹھنے والا کوئی اور ہوتا ہے، چلانے والا کوئی اور ہوتا ہے، تو ہم چلائیں گے، آپ بیٹھیے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جلدی اتار، نیچے اتار، نیچے اتار۔ عمر اس جانور کی سواری نہیں کرتا ہے جس کا لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھنا صاحب، ہاں، جو حالات جو وقت چل رہا بہت بڑی بات ہے یہ۔ ہاں، فوراً آپ ہاتھی سے نیچے اتر گئے، ارشاد فرمایا خبردار دوبارہ یہ سواری میں کہیں دکھنے بھی نہ پائے، اس کو شامل بھی نہیں کیا جائے گا، بھلے نئی چیز ہو، لے جاؤ واپس اس کو۔ عمر اس جانور کی سواری نہیں کر سکتا ہے جس کا لگام دوسرے ہاتھوں میں ہو۔ وہ حکومت عمر کیسے کرے گا جس کے چلانے والے دوسرے ہو اور چلنے والے دوسرے ہو؟ نانا، عمر کے دروں کی گرج نے آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا کر بتا دیا، حاکم بھی ہم ہی ہیں، منصف بھی ہم ہی ہیں، قاضی بھی ہم ہی ہیں، جج بھی ہم ہی ہیں۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान मुकर्रम, फातह खैबर, अशरा मुबशरा, अस्मत शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो काम करके गए हैं साहबा। आज ऐसे नहीं दुनिया खुतबा पढ़ रही है साहब। हाँ, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिससे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिससे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। तो वो इस्लाम की चमक, नबी के तबलीग की रोशनी जो कायनात में आज भी गूंज रही है, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिलखुसूस बहादुर शाह जफर का दौर जाने के बाद उस पर काम किया गया और कहा गया कि इस कौम को, यानी नबी के दीन का कलमा पढ़ने वालों को मारने का तरीका क्या है। तलवार तो नहीं चाहिए, तीर से नहीं मारना, नेजों से नहीं मारना, इसको कत्ल नहीं करना, लेकिन इसे ऐसे कर देना है कि ये हमेशा मुर्दा रहे। ये जायचा अंग्रेजों के दौर में तैयार किया गया था, जिसको तकवीयत मिली 1824 में, जिसको तकवीयत मिली 1824 में जायचा तैयार हुआ। ऐसे नहीं अचानक चीजें आ जाती हैं साहब, इसकी में तैयार की गई कि क्या किया जाए। इस कौम को मारने के लिए हिंदुस्तान में पहली मर्तबा यह फैसला हुआ था कि इसके दिलों से इसके नबी की मोहब्बत निकाल दी जाए, इसके नबी का प्यार निकाल दिया जाए। तो आदमी ये समझेगा कि सिर्फ प्यार निकलने से क्या होगा, सिर्फ मोहब्बत निकलने से क्या होगा। यारा वो मोहब्बत जिसको हम मामूली समझ रहे हैं, दुनिया ने जिस मोहब्बत को निकालने की बातें की थी, वो मोहब्बत नहीं थी, वो जिस्म की रूह थी जिसको निकालने की बात की गई। हाँ, जिस्म की रूह थी वो। मोहब्बत इसकी निकाल दो, क्योंकि उन्होंने हमारी तारीखें पढ़ी हैं, आज भी गैर पढ़ रहे हैं। हमसे ज्यादा हमारी तारीखें पढ़ी जा रही हैं दूसरों की जबानी, हमसे ज्यादा कुरान पर सर्च हमसे गैर कर रहे हैं, हदीसों पर रिसर्च जारी है, सारी चीजें चल रही है। तो उन्होंने देखा कि ये वो कौम है, बद्र में गई, किसके बलबूते पर ये खड़ी थी भाई? 313 में सवारी के लिए 2 घोड़े या 1 घोड़ा, बस 313 में सवारी के लिए 1 या 2 घोड़े की रवायत मिलती है, और 313 में टोटल 8 तलवार, 313 में लोहे की 8 तलवार, बाकी सब निहत्थे। 313 में 6 जेरा, जेरा जो पीतल के जंजीरों की सदरी बनती थी जिसको पहनते थे, तो उस पर तीर नेजा असर नहीं करता था, ये हिफाजती जैकेट होती थी। तो वो 6 जेरा, 8 तलवार, 1 या 2 घोड़ा। ये तारीख अंग्रेजों ने देखी इसी हिंदुस्तान में। कहा और आगे पलटो, और आगे पलटो, कामयाबी किसके हाथ आई? मक्का वालों का क्या मामला था? मक्का वाले 1000, मक्का वाले 1000, इधर 313। मक्का वालों में 1000 के साथ 1000 घोड़े भी, 1000 तलवारें भी, 1000 नेज़े भी, 1000 जरहे भी, और खाने पीने का वाफर तरीके पर सामान मौजूद था, रसद मौजूद थे। तो इधर 313 तलवार माइनस, घोड़ा माइनस, तीर माइनस, तबर माइनस, जेरा माइनस, और उधर सब कुछ का। और पन्ना पलटो, और पन्ना पलटो, फतेह किसने हासिल की? तो कहा ये तो 313 ने फतेह हासिल की। कामयाबी किसने हासिल की? वो 313 है भाई। मक्का वालों के पास तादाद 1000, घोड़े 1000, तीरों तबर 1000 से जायद, तलवारें 1000 से जायद, लेकिन वो शिकस्त खा गए और 313 इधर फतेह
हासिल करके अपना परचम लहरा रहे थे और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी, तो ये जायजा जब हिंदुस्तान में देखा गया, इस नक्शे को तैयार किया गया कि यहाँ कामयाबी 1000 को क्यों नहीं मिली, 313 को कामयाबी क्यों मिली, आखिर ये कामयाब कैसे हुए। तलवार नहीं है फिर भी कामयाब, घोड़ा नहीं फिर भी कामयाब, तीर तबर नहीं फिर भी कामयाब, ये जीते कैसे। तो लास्ट में जो निचोड़ निकाला गया वो ये था, ये अपने नबी के इश्क की बुनियाद पर जीते हैं, ये असलहों की बुनियाद पर नहीं जीते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मोहब्बत की बुनियाद पर, सिर्फ अपने नबी से सच्चा प्यार करने की बुनियाद पर, इश्क करने की बुनियाद पर। आपको एक मिसाल दे दे साहब, एक घर में मिसाल के तौर पे आग लग गई, एक बच्चे की चीख आ रही है, अंदर से बच्चा फंसा हुआ है, करीब है कि वो भी जल जाएगा, और चारों तरफ से आग ने घेर रखा है, लपटें उठ रही हैं। गांव वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, पड़ोस वाले सब मौजूद हैं। कोई बाल्टी में पानी लेकर आ रहा है, कोई चीख रहा है, अरे बचाओ बचाओ, अरे जल्दी करो, इधर से लाओ, उधर से दबाओ, इधर से करो, उधर से करो। अंदर कोई नहीं जा रहा, अंदर कोई नहीं जा रहा। सब कोई बाल्टी लिए खड़ा है, कोई पाइप लेकर दौड़ रहा है, कोई कुछ लेकर दौड़ रहा है, अंदर कोई नहीं जा रहा। अचानक एक शख्स आया, भीड़ को चीरता हुआ, वो कहीं दूर था, खबर मिली, भीड़ को चीरता हुआ आया और उसने छलांग लगा दी, और छलांग लगा करके अपनी पुश्त पर बेटे को लेकर आ रहा था। उसके कपड़े में आग लगी हुई थी। हमने कहा ये हजारों में कोई अंदर न जा सका, ये कौन है जो चला गया, तो कहा इश्क है। हाय 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 हाय, ये उसी बेटे का बाप है, बाप, उसके रगों में इसका खून दौड़ रहा है। ये मोहब्बत है, बेखतर आतिशे नमरूद में, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाबा भी, तो इश्क की वो आग है साहब, जो दरियाओं में भी सहाबा को घोड़े डालकर उस पार उतार देती है। वो इश्क है जो सहाबा को रेतीले मैदान में भी, जलती हुई रेत में भी मुसाफिर बना दे। वो इश्क मुस्तफा है जो पहाड़ों से भी टकराने का जज्बा दे दे। वो इश्क मुस्तफा है। तो अंग्रेजों ने कहा ये इश्क अगर बाकी रहा तो इनमें का एक भी आदमी जिंदा होगा तो मोइनुद्दीन बनकर 90 लाख को कलमा पढ़ा करके इस्लाम दे देगा। इसलिए इस कौम के दिल से इश्क निकालना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई हुदैबिया का मौका आपने वाकया सुना होगा उलमा से, हुदैबिया का मौका जहां पर बहुत बड़ी सुलह हुई थी, सुलह हुदैबिया तारीख में बहुत मशहूर है। वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए, जासूसी करने के लिए जो अभी कलमा नहीं पढ़े हुए थे, उरवा इब्ने मसूद, मक्का वालों ने उनको भेजा, कहा जा करके रिपोर्टिंग करके आए। कितनी तादाद लेकर आए हैं, सवारियां कितनी है, लश्कर कितने हैं, असलहे कितने हैं। उरवा इब्ने मसूद को भेजा। उरवा इब्ने मसूद आए। वाकया लंबा है लेकिन मुख्तसर करके मैं बता दूं। उरवा इब्ने मसूद आए, खड़े रहे, क्योंकि जासूसी करने आए थे, इसलिए बहुत करीब नहीं गए, दूर से देखते रहे, क्योंकि अभी कलमा भी नहीं पढ़े थे। मक्का वालों की तरफ से जासूसी करने आए थे, रिपोर्टिंग। देर तक खड़े रहे, खड़े खड़े देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, पलट करते रहे। अच्छा, उधर अबू जहल, उतबा, शैबा, मुगीरा एंड पार्टी सब खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे उरवा का, क्योंकि उन्हीं के बयान पर फैसला होना था कि आगे कदम क्या उठाना।
अगर ये रिपोर्टिंग करके आते हैं और बताते हैं कि तादाद 0 है तो फिर हम लोग सफाई कर देंगे, और अगर बताएंगे हमसे कहीं ज्यादा है तो फिर उसी हिसाब से तैयारी की जाएगी। तो उरवा इब्ने मसूद का बहुत तेजी के साथ इंतजार हो रहा था। सब मक्का वाले खड़े हुए, बिल्कुल बस सरहद सब बिल्कुल एकदम तैनात थे। इतने में घोड़ा आता दिखाई दिया तो कहा कि लगता आ रहा है। आए उरवा इब्ने मसूद, आए अबू जहल से जा करके पकड़ के गले लगाएगा, मेरे यार हट जा, ज्यादा गले लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मक्खन पालिश लगाते हो, क्या बात है। बहन भाई तुम रिपोर्टिंग करने गए थे तो हमने कहा कि हम ही पहले पूछ ले क्या करके आए हो। अच्छा सबके सामने बताओ, सारे लोग खड़े थे। उरवा इब्ने मसूद, बताओ क्या देख कर क्या, जल्दी बताओ भाई, हम लोग घबराहट हो रही है, तुम बोल नहीं रहे हो। तो कहा कि अबू जहल, ये बिल्कुल तारीख में बोल रहा हूं, तारीख में, सीरत में, अबू जहल रात की तारीकी में अगर भागना है तो भाग। क्या पागलपन की बातें कर। अच्छा बताओ तादाद कितनी है? तो कहा तादाद तो उंगली पर गिनी जाएगी, 300 के ऊपर नीचे। तो कहा कि लाओ लश्कर, तो कहीं सब 0। तो कहा उसके बाद भी भागना हो तो भाग लो। तो कहा ये क्या कर रहे हो, लाओ रस्सियां इकट्ठी करो, सबको बांध करके लाएंगे, बद्र से पहले की रिपोर्टिंग है, ये बांध करके लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कहा कि अबू जहल, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में सरदारी की है। आज जो मैंने अपनी निगाहों से देखा है, रिवायत के अल्फाज है, अल मनाया तहमिलुल बलाया, मदीना की ऊँटनियां अपनी पीठों पर तुम्हारी मौतें उठा कर लाई। मदीना की ऊँटनियां अपनी पीठों पर तुम्हारी मौतें उठा कर लाई, इसलिए भागना है तो भाग लो, बच जाओगे। तो कहा क्या तू देख करके आया है, ऐसी कौन सी चीज देख ली भाई? तो कहा मैं ऐन उस वक्त पहुंचा जब मुसलमानों का पैगंबर नमाज के लिए वजू कर रहा था। मैं उस वक्त पहुंचा जब मुसलमानों का पैगंबर नमाज के लिए वजू कर रहा था। मानने वाले वो दीवाने इर्द गिर्द हाला बनाए खड़े हुए थे, वो हाथों का वजू करते थे तो सैकड़ों हाथ नीचे बिछे होते थे। एक कतरा वजू का पानी वो जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। जब पानी उनके हाथों से गुजरता तो किसी दीवाने की हथेली पर होता, वो उसे या तो पी लेता या अपने चेहरे पर मल लेता या हाथों पर मस कर लेता। जिसको बराहे रास्त भीड़ की वजह से पानी न मिलता, उसके हाथों से अपने हाथ रगड़ रहा होता जिस पर वजू का पानी लगा होता, और ऐसा लगता था आपस में लड़ जाएंगे। कहते थे यारा जोहर का पानी तूने लिया है तो असर का मुझे ले लेने दे। अगर वो गुल्ली करते थे तो वो भी किसी दीवाने के हाथ में, नाक साफ करते थे वो भी किसी दीवाने के हाथ में होता। इसलिए अबू जहल, मैंने फैसला कर लिया है, होशियारों से लड़ना आसान है, दीवानों से लड़ना ना तो चले चबाना है। इसलिए नबी ने आशिकों की जमाअत उतार दी है, दीवानों की जमाअत उतार दी है। ये इश्क नहीं आसान जिसको तू समझता है, एक आग का दरिया है वो भी डूब कर जाना है। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये मुस्तफा के इश्क का इनकलाब था कि सहाबा जंगलों बेयाबानों में भी गुजरते चले गए और सहराओं में भी सदाए अल्लाहु अकबर बुलंद करके ये बता दिया कि अगर ये दौलत ईमान, ये मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो तुम कभी भी डूब नहीं सकते हो, कभी भी फना के घाट नहीं उतर सकते हो। इसलिए मोहब्बत होगी तो फिर जिस महबूब से मोहब्बत है, खाना भी उसी महबूब के तरीके पर होगा,
नमाज भी उसी महबूब के तरीके पर होगा, चलना उठना बैठना भी उसी महबूब के तरीके पर होगा। यहाँ तक सहाबा ने अदाओं को अपना लिया था कि मौका आया, असर का वक्त निकल रहा था, अचानक सहाबी ने मुस्कुरा दिया। कहा क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा पड़े, कोई बात तो मुस्कुराहट की नहीं हुई। कहा यही वक्त था मेरे आका ने मुस्कुराया था, मैं नहीं जानता क्यों मुस्कुराया था, बस सब सिर्फ उनकी अदा समझकर मुस्कुरा रहा हूँ। वो क्यों चले थे ये नहीं मालूम, लेकिन ऐसे चल रहा हूँ उनकी अदा समझकर। इमाम मालिक ने मदीना की पुरानी दीवार की ईंटों को उठा करके होठों से लगा लिया, कलेजे से लगा लिया, चूम लिया। कहा मालिक क्या हो गया, कहा ये तो नहीं मालूम कि किन ईंटों पर उनकी निगाह पड़ी है, लेकिन ये पुरानी ईंटें बता रही है कि इन्होंने जमाना पाया है आमीना के लाल का, मुस्तफा जाने रहमत का। हो सकता आका इधर से गुजरे हो, अरे कुछ नहीं, दामन की हवाएं ही लग गई हो, इसलिए मैं ईंटों को नहीं निस्बते सरकार को चूम रहा हूँ, इसके मुस्तफा को बोसा दे रहा हूँ। तो उम्मत में जब तक ये दौलत बाकी थी, उम्मत जो है हर दौर में फतेह के परचम बुलंद करती चली आई। अंग्रेजों ने इस पर डाका डालने की कोशिश की और ये चाचा तैयार हुआ था। इसी हिंदुस्तान में उठाओ हिंदुस्तान की तारीख, बहादुर शाह जफर के दौर में ये काली तारीखें लिखी गई हैं इसी हिंदुस्तान में। इस कौम को अगर मारना है तो सबसे पहले इसके दिल से इसके नबी की मोहब्बत निकाल दो, उनका प्यार सिर्फ निकाल दो। और ये काम कौन करेगा, ये काम आम आदमी नहीं करेंगे, ये काम उन्हीं लोगों में से लोग तैयार होंगे और उन्हीं में अंदर बैठ करके उनके लिए काम करेंगे। और वो काम हुआ हिंदुस्तान में, और बहुत तेजी के साथ ऐसे लोग भी उठकर खड़े हुए माज़अल्लाह, जिन्होंने कहा हमें कुरान काफी है, नबी की हमें क्या जरूरत है। ये बात अंग्रेजों की थी जो बरसरे मिंबर कही गई कि हमें नबी की अब हाजत नहीं है। नबी तो माज़अल्लाह एक पोस्टमैन और डाकिये की हैसियत से आए थे, हमें खत मिल गया, खत लाने वाले से हमें जरूरत नहीं है। हमने कहा ओ जलीलो, अगर खत लाने और पहुंचाने का मसला होता तो फिर कलमे में ला इलाह के साथ महबूब को शामिल न किया जाता। अगर जो है वजू में वो तुम गुस्ल ले लो, अगर फर्ज है तो साथ में महबूब की सुन्नत घेरे हुए है, फर्ज एक है तो महबूब की सुन्नत उसमें 17-18 मिल जाएगी। आप वजू में आ जाओ, अगर तुम्हें जो है फराइज में कितने हैं, वजू में 4 फराइज आते हैं, 4 फराइज हैं, लेकिन जब महबूब की सुन्नतों को देखोगे तो गट्टों तक हाथ धुलना भी सुन्नत है, कुल्ली करना भी सुन्नत है, नाक में पानी डालना भी सुन्नत है, 3-3 मर्तबा धुलना भी सुन्नत है, पैर दर पे धुलना भी सुन्नत है। ये सारी चीजें इबादत से लेकर के तमाम रोजे, हज्जो, नमाज, ज़कात, जितनी भी इबादत मामलात हैं, उन सबों में फर्ज अगर एक है तो महबूब की सुन्नत 21 है, फर्ज अगर 4 है तो महबूब की सुन्नत 24 है। ये सब घेरे हुए हैं, ये घेरना और फिर कब्र में पहुंच करके उसी महबूब की जात के ताल्लुक से पूछ लेना, ये बता रहा है कि नबी सिर्फ वसीला नहीं, उम्मत के लिए मकसद भी है, जिंदगी भी है। बेशक हक है, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इसलिए बहुत तेजी के साथ ये काम किया गया कि सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जोर लगाया जाए कि ये कौम पढ़ी लिखी हो करके भी अनपढ़ रहे, ये कोशिश की जाए। अब पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ रहे के क्या मतलब डिग्री MBBS की हो लेकिन इस्तिंजा से पाकी का तरीका उसे ना आए, इतना जाहिल भी। LLB की डिग्री उसके पास हो लेकिन सगी माँ के बदन पर कितने कपड़े आएंगे कफन के, ये भी उसे मालूम ना हो, इतना जाहिल।
सगे बाप के सिरहाने कब्र पर खड़े होकर के कुरान की चंद सूरतें भी पढ़ने से यतीम हो जाए, इतना जाहिल हो। पढ़ी लिखी हो लेकिन जाहिल हो इतनी हो कि खुद से वजूद को पाक करने के भी काबिल ना हो, तो पढ़ा लिखा जाहिल बनाने की ये स्कीमें इसी हिंदुस्तान में चलाई गई और आज तक अंग्रेज चला गया लेकिन अपनी पहचान दे करके चला गया। वो जहन्नम की चाबी जो टाई की सूरत में गले में लटकाई जा रही थी, अंग्रेज छोड़कर चला गया, हम उसे जुदा न कर सके। अंग्रेज जबान छोड़कर चला गया, हम जुदा न कर सके। हमने कहा दुनिया की सारी जबानें सीखो, इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता है, लेकिन सारी जबानें जो 400 450 के करीब दुनिया में, पूरी दुनिया में बोली जाती है, उन 400 जबानों को नीचे रख दो, सबसे ऊपर कुरान की जबान को रख दो ताकि कोई गुमराह ना करने पाए, ताकि तुम्हें कोई उचकने ना पाए। ये मतलब नहीं है कि तुम अंग्रेजी पढ़ो कुरान छोड़ करके, फारसी पढ़ो कुरान छोड़ करके, हिंदी इंग्लिश जो है पढ़ो कुरान छोड़ करके, गुजराती बंगाली जापानी पढ़ो कुरान छोड़ करके। नहीं साहब, अगर आपने ये चीज छोड़ी और उसको सिर्फ आपने अपना लिया तो अब डॉक्टर बनने के बाद, इतनी जिम्मेदारी वाली डिग्री पाने के बाद भी आप हराम खाने से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस्लाम उस निगरानी का नाम है जो रात की तारीकियों में भी तुम्हारे ख्वाहिशात का जानवर जाग उठे और सोचो कि पड़ोस का दरवाजा खुला है, मैं छलांग लगा दूं, रात की तारीकी में कौन देख रहा है। इस्लाम उठकर खड़ा हो जाएगा, ओ जालिम क्या तू खुदा को भूल गया है, तेरी हर हरकतों को तेरा रब देख रहा है। बेशक तो रात की तारीकियों में भी कोई जुर्म करने से पांव की बेड़ियां बन करके उसे रोक दे, उसे मजहब कहा जाता है, उसे मजहब की तालीम कहा जाता है। अब डॉक्टर बनने के बाद, इसमें कोई डॉक्टर होगा तो बुरा नहीं मानेगा, हम दूसरे डॉक्टर को बता रहे हैं, मतलब डॉक्टर होने के बाद मजहब छूटा, कुरान से जाहिल है, दीन से जाहिल है, शरीयत से जाहिल है, नबी की सीरत से जाहिल है। हाँ, डिग्री लंबी लंबी है, वो MBBS तो पता नहीं कौन कौन से जो है, जो है हमको तो सब याद नहीं है, बहुत सारी डिग्रियां मतलब सब बोर्ड पर लिखाए रखे हैं, ये हो गए ये हो गए, तो हमने कहा ठीक है सब हो गए, लेकिन बैठ करके मरीज को खून निकलवाने के लिए पर्चा अपनी क्लिनिक से लिख करके भेजा। अब मरीज का वहां 700 रुपया मिसाल के तौर पर चार्ज किया गया, 250 रुपया इस जलील का है जिसने पर्चा लिखा। मरीज तड़प रहा है, उसकी मां ICU में जा रही है, घर बेच करके, घर गिरवी रख करके, जेवर गिरवी रख करके वो आया है, खून पर भी हराम लुकमे खाने के लिए ये बिल्कुल एकदम दांतों में खून लगाए कुर्सी पर बैठा है, डिग्री लंबी है, लेकिन मजहब साथ नहीं है, तो ऐसी हरामकारी से कोई रोक नहीं रहा। पर्चा लिखा मेडिकल स्टोर के लिए, तो मेडिकल स्टोर पे अगर दवा 250 की बनी, इसका 500 चार्ज किया गया, क्योंकि उस दलील का 250 जाना है। एक्सरे किया, उसमें 200 दलील को जाना है खून का, और जो है या MRI हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, दुनिया भर की फालतू की चीजें। मतलब डॉक्टर ये है और मशीनों से पूछ रहा है इनको क्या हो गया, आप बता दीजिए तो मैं दवा दे दूं। हमने कहा दलील कहीं कि तू डॉक्टर क्यों बना है, सारी मशीनों से पूछता है इनको क्या हो गया, अक्सरे तू बता दे इसको क्या हो गया है, अल्ट्रासाउंड तू बता दे पेट में क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, ये सब मशीनों से पूछ रहा है। अब पता लगा कि वहां रिपोर्ट में इधर उधर चीसी हुई, तो अभी हाल ही में कुछ मामला उठा था, एक आदमी को डॉक्टर ने कहा कि जो है 3 महीने के तुम प्रेग्नेंट हो। तो कहा भाई देखो जांच में निकला है, रिपोर्ट तुम्हारी आई है, तो पता लगा कि वो पेशाब का सैंपल बदल गया। हाँ, वहां सैंपल बदला तो इसको प्रेग्नेंट। ऐसे गंवार लोग MBBS की डिग्री लिए बैठा है और सारी हरामकारियां, वकालत
की डिग्री लिए बैठा है, उसका मुकदमा, इसके मामलात, वहां से घूस 10,000, इधर से 15,000, ये झूठ को सच, सच को झूठ, ये सारी चीजें। अगर इसमें कोई लगाम लगा सकता है तो वो दीन का तालीम है, वो मजहब है। मजहब जो कुर्सी पर बैठकर भी, हमने ऐसे डॉक्टरों को भी देखा है जो बिस्मिल्लाह पढ़ करके इंजेक्शन लगाते हैं, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी पढ़ करके दवा पैक कर रहे होते हैं, दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर रहे होते हैं, और नाजायज एक भी पैसा उसमें शामिल नहीं होने देते, वो भी बैठे हैं, वो बेलगाम। इधर से ये पाबंदी में आखिर किसने सिखाया? उधर मजहब हटा, मजहब की तालीम हटी तो वो डॉक्टर होने के बाद भी जानवर हो गया। इधर मजहब साथ है, दीन का इल्म साथ है, तो डिग्री पाने के बाद भी वो मोमिन रहा, मुसलमान रहा, उसके रिज़्क भी पाक रहे, उसका लुकमा भी पाक रहा। इसलिए मजहब की पाबंदी जरूरी है साहब। हम अपनी नस्लों को दुनिया की तमाम ज़बानें सिखाएं, लेकिन दीन छोड़ करके नहीं। देखिए, कोई भी दुनिया की चीज हो, सजावट में सारी चीजें की जाती है, लेकिन असल को पकड़ कर, असल कभी छोड़ी नहीं जाती। बस खत्म कर रहे हैं, आप परेशान हो गए, काफी वक्त ले लिया गया। आज यहाँ जलालपुर के जलसे में आज शायद कि मैं पहला मुकर्रिर हूँ जो इतना समय नहीं, आपकी मोहब्बत, आप बैठे रहे तो हमारी थकान भी दूर हो गई है। तो असल को छोड़ करके नहीं, असल पकड़ कर। सजावटें कितनी भी हम यही गलती कर जाते हैं, सजावटों में उलझ जाते हैं, बस असल छूट जाता है। जैसे दूल्हे का सेहरा भी 15,000 का, शेरवानी शेरवानी भी 20-22,000 की। ऐसा ऐसा दुल्हा हम देखें जैसे जूता 22,000 के साथ, सही जूता 22,000 का हो, हम कहें शर्मा लगावे कहाँ पहले भाई जाना तो पैर ही 22,000 के जूता, तो शेरवानी 20-22,000, जूता 20-22,000, सेहरा 15-20,000। ये सारा सिस्टम हुआ। 15,000 डीजे वाला लिया, 2,500-3,000 घोड़ा गधई वाला लिया। डीजे की गाड़ी आगे, उसके पीछे दूल्हे की गाड़ी, उसके पीछे बारातियों की गाड़ी, सब जा रहे हैं। इसे दूर से लंबी सड़क पे देखने में लगता है कि इमाम साहब सारे मुक्तदियों को लिए जा रहे हैं। इबलीस इमामत करता है, उसके चेले चपाटे पीछे कूदते उछलते जा रहे। अब गए, खाने का मेनू साफ कर दिया, नाश्ता बिल्कुल साफ कर दिया, सारी सिस्टम बिल्कुल एकदम सब खत्म हो गया। यहाँ तक कि शाम हो गई, टेंट खुलने की नौबत आ गई, टेंट खुलने की नौबत आ गई। बिल्कुल आंखों देखी हाल बता रहे, जिंदाबाद है। टेंट खुलने में बराती कितने गए थे? 400। बिल्कुल शाम हो गई तो दूल्हे का बाप, उसका मामू और वो नालायक बदनाम फूफा, ये रिश्ते में है कि हो तो बुरा लगा, सबसे बदनाम फूफा। तो ये 2-4 लोग, मुश्किल से 10 लोग बैठे थे, 4 कुर्सी लगाए वहीं पर, और टेंट वाला भी खड़ा मुंह देख रहा था। थोड़ा सा किसी का हम खोल तब किसी ने कहा कि लाओ देखो मौलाना खून करो, लाओ निकाह पढ़ा लिया जाए। हाँ, गाड़ी 400, एक कलर के स्कॉर्पियो, एक कलर का स्कॉर्पियो 400, बराती 400, ऐसा भरा हुआ सारा सिस्टम। लेकिन जब लास्ट हुआ एकदम सब गुजर गया, सारे बराती चले गए, 2-4-10 लोग बचे। तो कहा कि ना निकाह पढ़ने, हमने कहा 8-10 साल और गुजरे थियो, ये इतना VIP हो गई है कि बहू विदा हुए के बाद में कहूँ 1-8 महीना बाद याद आई कि लागत है निकाह रह गया का हो। हाँ, तो बला मौलाना कहे कबूल कराई दो। हाँ, इतना तरक। तो सारी सजावटों पर पूरी एनर्जी खर्च कर दी, जो बुनियाद थी, असल था, उसी को भुला दिया।
आज मुसलमानों में अगर सबसे बेरौनक महफिल कहीं होती है तो कहीं कहीं माहौल है, ठीक है, नहीं तो 90-99% सबसे बेरौनक महफिल निकाह की महफिल होती है। हाँ, ऐसे रवाज बना दिया, जाएंगे 400 आदमी और जब निकाह खानी होगी तो अरे एक जगह तो वकील के नाम हम लिख लिए गलती से और 10 मिनट लेट हुआ तो वकील वही चला गया। हाँ, वकीले गायब, अब गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं। और फिर बाशरा तो ढूंढना तो फिर वो तो बहुत बड़ा चैलेंज ऐसा, बाशरा ढूंढना, जैसे गवाही शरीयत में बाशरा की मानी जाती है, तो बाशरा गवाह ढूंढना उस निकाह की महफिल में, ये तो बहुत खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक चैलेंज वाला काम है। बाशरा का जो बेशरा है वनहु निकल चुका है, एक भी आदमी गवाही देने के लिए नहीं, तो बिल्कुल बेरौनक कर दिया। तो असल छोड़ करके जब सजावटों पर तवज्जो दी जाएगी तो वो बेवकूफ कहा जाएगा, अकलमंद नहीं कहा जा सकता है। चलो तुम सेहरा 15,000 का नहीं, तुम 5,000 का सेहरा पहन लिए, जोड़ा जामा 22,000 का नहीं 7-8 हजार का पहन लिए, जूता तुम 22,000 का नहीं, तुम चलो 2-2.5 का पहन लिए, लेकिन जैसे 400 आदमी, बारात का तो कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है, लेकिन 400 अगर तुम्हारी हैसियत में चले भी गए, मिसाल के तौर पर पहुंचे, पानी पिए और फौरन पानी पीने के बाद एक तो टाइम की पाबंदी होनी चाहिए, ऐलान कारण में होता है 11 बजे और बारात पहुंच रही है शाम को 5 बजे। एक तो टाइम की पूरी बर्बादी, इसीलिए आदमी उसमें शरीक नहीं हो पाता। तो ये सिस्टम बना करके रखा जाए कि आदमी पहुंचे, पानी पिए और फौरन कुरान की तिलावत, ऐसे माइक लगा हो, स्टेज लगा हो और पूरी महफिल, भाई 400-500 उनके भी रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार सब बैठ जाए, फिर कुरान की तिलावत हो, फिर नबी की नात चंद अशार पढ़ दी जाए, उसके बाद निकाह की जरूरी, निकाह के मसले पर जरूरी गुफ्तगू, फजाइल पर, मसाइल पर 15-20 मिनट की गुफ्तगू हो जाए, उसके बाद सारे लोगों के सामने फार्म पुर हो, एजाबो कबूल माइक में हो, उसके बाद 400-500 आदमी हाथ उठाकर दुआ करें, या अल्लाह ज़ौजैन में ऐसी मोहब्बत दे दे जैसे आदम और हव्वा को अता फरमाई, जैसे अलीगुल मुर्तजा वो सैयदा को अता फरमाई, और सब आमीन कह रहे हो। इसीलिए इनको बुलाया जाता है कि ये सब गवाह हो जाए, सब लोग आमीन कह दे। अरे 400 में कोई तो एक नेक मिलेगा जिसकी आमीन कबूल हो जाएगी तो मेरे बेटे का बेड़ा पार हो जाएगा, उसके निकाह में बरकतें, उसकी नस्ल में बरकतें आएगी। तो कभी असल को छोड़ना नहीं चाहिए, सजावट जीरो करो और दुनिया की खुराफात जीरो कर दो, जो असल है निकाह उसको नंबर 1 पर लाओ, ताकि कोई गैर भी उस महफिल की तरफ से गुजरे, पूछे आज ये क्या हो रहा है, रबीउल अव्वल तो नहीं है, मुहर्रम तो नहीं है, ये आज क्या हो रहा है, तो बताए कि आज ये कोई त्योहार नहीं, मुस्तफा की सुन्नत निकाह को किया जा रहा है, नबी की सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है। आज मजलिस से निकाह को मुनक्किद किया गया है, आज दुआएं होगी, आज एक बिछड़े हुए तो आज रिश्तों में बंधेंगे, आज उनके मोहब्बत की दुआएं होगी, उल्फत की दुआएं होगी। तो नबी ने फरमाया निकाह आसान कर दो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। हम उसको कठिन से कठिन स्थितियों में लेकर पहुंचा दिए, भाई कोमम चला गया मामला, हाँ बिल्कुल कोमम चला गया, ऐसे चला गया, सब बर्बाद करके रख दिए। तो ये सिस्टम ने असल को छोड़कर कभी नहीं। इसी तरीके पर आप दुनिया की कोई भी जबान हासिल करो, लेकिन असल कभी भूलना नहीं। कुरान अपने बच्चों की घुट्टियों में जरूर दे देना ताकि तुम दुनिया से चले जाओ, ये उठकर कल को जिम्मेदारी ले। भाई जैसे आज 40-50 साल के बाद आज जितने यहाँ मौजूद है, हम में कोई नहीं, भाई 50 साल अगर इस पर डाल दिया जाए तो हम जितने बड़ों में मौजूद हैं, अगर 100 साल डाल दिया जाए तो जितने मौजूद हैं इनमें कोई नहीं होगा, शायद कोई या ना इधर से ना उधर से, ना बोलने वाला ना सुनने वाला,
लेकिन एक चीज याद रखें, अगर आपने कुर्बानियां दी हैं तो ये मिंबर भी होगा, सामईन भी होंगे, बोलने वाला दूसरा होगा, सुनने वाले दूसरे होंगे, खुतबा मेरे मुस्तफा ही का पढ़ा जा रहा होगा, नात मेरे नबी ही की पढ़ी जा रही होगी। क्योंकि हम नस्लों को सींच करके गए हैं तो हम कब्र में चले गए, लेकिन हमारी नस्लें उठ करके कुरान की तर्जमानी कर रही हैं, दीन की तर्जमानी कर रही हैं। हम मुबारकबाद पेश करेंगे हजरत हाफिज़ कारी जो है जमाल अहमद साहब, अलहाज जमाल अहमद साहब को हम मुबारकबाद पेश करेंगे। अभी हजरत ने बताया कि हजरत जो है घर में ये सिस्टम चल रहा है। हमने कहा घर में सिस्टम चल रहा है, ठीक है, ये सोचा घर में क्यों चल रहा है, क्या वजह है? कौम इसको जरूरी नहीं समझ रही है। एक चीज याद रखें, बच्चे अपने माओ की तबीयतें 99% अखज करते हैं, 99%। और सिर्फ यही नहीं, पैदा होने के बाद हम पूरी रिसर्च इस पर बता दें आपको कि 9 महीने बच्चा माँ की कोख में रहता है तो वो अक्सर जो है दिल की तरफ होता है। 9 महीने कोख में माँ के दिल की साइड में बच्चा होता है और माँ की जबान से जो कलमे निकलते हैं, यहाँ तक कि उसके दिल की धड़कनों से वो बच्चा असर लेता है। और अगर बच्चा और ज्यादा होशमंद हो तो और ज्यादा असर लेता है, और ज्यादा होशमंद हो तो और ज्यादा असर लेता है। यहाँ तक कि होशमंद में नंबर 1 पर हो तो इतना असर ले लेता है कि वहीं पर 18 पारे जबानी याद भी कर लेता है। हाँ, जिन्हें गौसे आजम कहा जाता है। माँ की जबान से जो कलमात निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है तिलावत हो रही है, तो तिलावत बच्चा कोख में मौजूद उस तिलावत को समाप्त भी कर रहा है। तो अगर इतना बाहोश ना हुआ हमारा और आपका बच्चा कि कम वो जबानी याद कर ले, लेकिन कम से कम कुरान की रोशनी तो पहुंचेगी, कुरान का नूर तो मिलेगा, उसका फैजान तो मिलेगा, उसकी रहमतें तो मिलेंगी, उसकी बरकतें तो मिलेंगी। तो 9 महीने कोख में अगर कोई दीन के पानी से अपनी नस्लों को सैराब कर सकता है तो वो माँ की साथ। और पैदा हुआ तो साहब कम से कम तो 2 साल तो मान ही लीजिए, 2 साल तो कंपलसरी है, लेकिन 5-5 साल उसी आंचलों के साए तले बच्चों को गुजर जाते हैं, जिन वो गोद में उसे लोरियां मिलती हैं, माँ का चेहरा होता, माँ की मुस्कुराहट होती। अभी तो बाप की तस्वीर निगाहों में नहीं आती है, लेकिन वो 24 घंटे माँ के ही उसमें होता है। यहाँ तक कि माँ अगर करवट बदल दे बिस्तर से तो वो रोने लगता है, इस कदर कुर्बत होती है। अगर दूसरे की गोद में दे दो चीखने लगता है, माँ की गोद में खामोश हो जाता है। ऐसी उम्र में भी वो चीज उसे एहसास उसका बाकी रहता है। तो अगर वो गोद पहचान सकता है तो क्या माँ की जबान से कुरान नहीं पहचान सकता? क्या उसके तिलावत से उसको फायदा नहीं पहुंचेगा? माँ अगर लोरियां दे तो बच्चा कुछ होश संभाले तो लोरियों को जबानी याद कर लेता है। माँ अगर पानी को मम कहे तो पानी को वो मम भी कहने लगे, तो ये जबानें वो सीख लेता है। देहाती बोले माँ तो देहाती हो जाता है, अंग्रेजी बोले माँ तो अंग्रेजी हो जाता है। तो क्या कुरान की जबान बच्चा नहीं सीखेगा? इसलिए आप भी जितने हम और आप हैं, ये भी माओ के शिकम की परवरिश का सदका है जो हम और आप बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा बेटों से कहीं ज्यादा बेटियों को दीन की तालीम से आरास्ता करना जरूरी है, क्योंकि बेटे एक चौखट पे रह जाएंगे, बाप की तरबियत काम कर सकती है, लेकिन बेटी के कई रूप होते हैं साहब। बेटी पैदा हुई तो बेटी की शक्ल में आई, बहन की शक्ल में आई, फिर तुम्हारी चौखट को वो छोड़ करके कहीं दूसरे शहर में, कहीं दूसरे गांव में, दूसरे चौखट को आबाद करेगी। माँ का चेहरा बदलेगा, बाप का चेहरा बदलेगा, शौहर का जो है नया चेहरा निगाहों के
के सामने एक नए आदमी का शौहर की शक्ल में आएगा। नया समाज, नई सोसाइटी, नई फैमिली निगाहों के सामने, तो वहां जाकर के अब वो बहू के भी शक्ल में भी है, बीवी के शक्ल में भी है, कल को गुलाब गोद में खिले बच्चों की शक्ल में, तो अब वो माँ के रूप में भी है। तो बेटी से लेकर के माँ के ममता तक, यानी जन्नत दिलाने से लेकर के कदमों के नीचे जन्नत लेने तक एक बेटी का रूल समाज में होता है, उसकी शख्सियत समाज में होती है। इसलिए बच्चों से कहीं ज्यादा बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे अक्सर माओं का ही पाठ लेते हैं, तो वहां दीन मिलेगा, तो बच्चे कल को जवान होंगे तो इंशाअल्लाह वो हुसैन आदम के गुलाम होंगे, वो दीन के गद्दार नहीं हो सकते। इसलिए समाज में भाई बेटियों को हम लोग बहुत सारी चीजें देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। कोई रुमाल बुनने सिखा रहा है, कोई कुर्तामा पैजामा सिलने सिखा रहा है, मतलब सिढ़ाई, कढ़ाई, बुनाई। और क्यों तो बताओ तुम, बिटिया तो हमारे पास हो गई, कहाँ पास हो गई? तो कहे ना बिटिया हमारा कौरमा बना लिए थी, बिरयानी बना लिए थी, हाँ भिंडी काट के धुल के बना लिए थी। मतलब बिटिया बिल्कुल माहिर है, तो सिखा दिया। देहात में डलवा बीनना, डलवा बीनना बताते हैं, डलवा सिखोना, वो सब बीनना सिखा दिया। स्वेटर स्वेटर बुनना सिखा दिया, मोजा मोजा बुनना सिखा दिया। क्या नहीं सिखाया? कुरान नहीं सिखाया। जाहिल। और ज्यादा वीआईपी से हो तो मुझे नफरत है, वीआईपी लफ्ज से नफरत है। जो इस दौर में वीआईपी चल रही, वीआईपी बना दिया। तो वीआईपी बनाने में क्या बनाया? बिटिया के पास इंटर का मार्कशीट भी है, हाई स्कूल भी है, एडीकेडी नर्सरी से तो पास है, बिटिया के पास सब है। बिटिया 17-18 साल की हो गई है, कॉलेज और स्कूल के गेट पर अपनी आबरू का सौदा कर रही है। अड्डी चड्डी, अंडरवियर, फलान दबाक, उल्टी सीधी हरकतें करके, मतलब सारे लिबास का इनकार, सारी चीजों का इनकार, और अधनंगा बदन समाज में अपना प्रचार कर रही है। बिटिया सब कुछ बिल्कुल पास है, एकदम जबरदस्त तरीके पर। यहाँ तक कि शादी हो जाए तो ऑफिस में वो भी ड्यूटी करके 18-20 हजार रुपया शौहर को कमा के खिला सकती है। अरे तो हाजी साहब, यहाँ के हाजी के नहीं कह रहे, हाजी साहब बिल्कुल फूले नहीं समाये, रिश्ता कबूल है। हम कहें चुप रहो, कबूल है। हाँ, रिश्ता कबूल कर लिया। जाकर के क्या देखा? कोठी देखी, मारुति देखी, बेटी की कमाई देखी, और जो बाजार में मार्केट में प्रॉपर्टी देखी, जमीन जायदाद देखी, सब देखा। अगर नहीं देखा तो दीन नहीं देखा। हाँ। नबी ने इरशाद फरमाया, फज़फुर बिज़ातिद्दीन, रिश्ता ढूंढने वालों, जब रिश्ता तलाश करना तो दीनदारी को नंबर 1 पर रखना, दीनदारी को तरजीह देना। वो कहे जमीन ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, हम ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। ये बता बेटी ने कुरान पढ़ा कि नहीं? तो कहा सिर्फ कुरान नहीं, हजरत के पास मेरी बेटी ने फजीलत भी कंप्लीट की है, कुरान भी कंप्लीट किया गया, नमाज की पाबंद है, रोजे की पाबंद है, तिलावत भी अच्छी होती गए। हमारी झोपड़ी है, हम कुछ ज्यादा दे नहीं सकते। कहा यारा उसकी कोई जरूरत नहीं, तूने 18-19 साल पाल करके मेरे बेटे के लिए एक अच्छी बीवी तैयार कर दी, इससे बड़ा दुनिया में कोई दहेज नहीं। तूने एक दीनदार बेटी दे दी, इससे बड़ा कोई दहेज नहीं है साहब। 16-17 साल पाल करके एक बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा थाल में सजा करके तेरे सामने रख दिया, जो आलिमा भी है, फाजिला भी है। अगर जलील दुनिया के चंद बर्तन और लोहे के कबाड़ अगर नहीं मिलते तो ऐसे रिश्तों को तुम ठुकरा देते हो, और जा करके ऐसी जगहों पर रिश्ते जहां भंगार इनाम में रखा जाता है
और बेटी को भंगार करके दिया जाता है, सजदे का सीन भी नहीं मालूम, दीन का दाल भी नहीं मालूम, उसे कुल हुवल्लाह तक ज़बानी नहीं याद है, वो नंगे बदन घूमने वाली जिसने कभी अपने चेहरे को न ढका, अपनी आबरू को का पर्दा न किया, अपनी निगाहों की हया न रखी, वो ऐसी बेगैरत को उठा करके तुम सिर्फ बीवी नहीं ला रहे हो साहब, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ की तलाश तुम कर रहे हो, तो वो दीनदार ही अच्छी माँ हो सकती है, अच्छी बहू हो सकती है, अच्छी बीवी हो सकती है, क्योंकि यहाँ मदरसे में हजरत के यहाँ या जो भी जहां भी उलमा पढ़ाते हैं, जहां भी मौलमात तालीम देती है, उन बच्चियों को सिर्फ ये कुरान नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ हदीस नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि ये अखलाकियात का वो आला मेयार उन बच्चियों को अता करते हैं साहब कि ये जहां भी चौखट पे जाएंगी ना, मदरसे ही से इन्हें वो गुण सिखा दिया है, मेरी बेटी कुछ भी करना शौहर से ऊंची आवाज में बात न करना। ये कॉलेज नहीं देगा ये तालीम साहब, ये मदरसा देगा। शौहर से ऊंची आवाज में बात ना करना, शौहर आ जाए तो उठकर खड़ी हो जाना, शौहर का अदब लाजिम है मेरी बेटी। क्या नबी ने नहीं फरमाया कि अगर मेरे इस शरीयत में, दीन में अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करना रवा होता तो मैं औरतों को हुक्म कर देता कि वो शौहरों को सजदा करें। ये रिवायत स्कूल कॉलेज की नहीं है, ये मदरसे में दी जाएगी, जहां एक सास की इज्जतें, उसके सर को तेल लग करके सरों की मालिश करना, पैर दबाना, और एक जो है ससुर की खिदमतें करना, वजू का पानी देना, उसको टाइम पर नाश्ता देना, ये एक आलिमा बेटी कर सकती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी और ऑफिसों में काम करने वाली वो नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर शौहर को कुत्ते की जिंदगी गुजारनी है तो वो किसी दुनियादार को बीवी बना ले, अगर शौहर को बादशाहत की जिंदगी गुजारनी है तो किसी आलिमा फाजिला को अपनी बीवी बना ले। ये बच्चियों की तालीम का असर होता है, इसलिए हम हजरत का साथ देंगे कि नहीं देंगे? ये अगर अपने घर की बात करते, अपने घर का चंदा करते तो हम कभी सपोर्ट ना करते, लेकिन ये आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो चराग जला के जा रहे हैं साहब, उसकी रोशनी भी रहेगी, उसकी छांव भी नस्लों में रहेगी। इसलिए कौम बिल्कुल बहुत मामूली चीज है साहब, 2 कमरे 4 कमरे बन जाना ये कौम के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी हजरत हाजिरी हुई मेरी उधर संडीला हरदोई इलाके में, तो पहुंचे वहां, हमने कहा ईशा पढ़ने गए तो देखे वो भी खाने में हजरत चाय चली गई, हमने कहा पानी ना हो वजू करे तो नल से पानी भर करके लाया, हमने कहा इतनी तरक्की आपका घर में कुछ चोटी करने लगा, लोटे से पानी तो पहले हम लोग ऐसे वजू करते हैं, अरे करो तो, लेकिन सबका थोड़ा ऐसा करा जाता है। खैर गए प्रोग्राम में, तकरीर के लिए बैठे, तकरीर हुई, तकरीर के दौरान ही हमने बात की, हमने कहा तुम्हारी मस्जिद हमने देखी आज, अच्छा धन्यवाद भी पड़ी, बहुत अच्छी बनी है यार, भी काफी लंबे हुए, एक कमी है यार, इस तरक्की आपका दौर में तुम लोग 1000 लीटर की टंकी नहीं रखता है। अच्छा हमने नमाज पढ़ी, वो सिस्टम देखा, वो हम कैलकुलेट करके गए थे कि कितना खर्चा इसमें आएगा, तो वो जो है बहुत ज्यादा नहीं बन रहा था, 15 से 16 हजार रुपया बन रहा था, क्योंकि मोटर उनका लगा हुआ था और 1000 टंकी और टोटी ये लगाना था सिस्टम में, तो 15 से 16 हजार आ रहा। तो हमने कहा कि एक कमी है यार, ये काम होना चाहिए, आदमी लोटे से वजू कर रहा है, पता लगा उसकी रकात चली गई, बात चली गई, टोटी से है कम से कम फास्ट वजू कर लेगा, जमात भी पकड़ सकता है, तो ये सिस्टम होना चाहिए। तो एक साहब बोले जो खजांची थे, कहा कि हजरत अब की आई हो तो टंकी लगा मिली, तो हम कहें मौलाना की इंतकाल हो जाए ना आवे तब, तो ये कौन गारंटी है हम अब सब टंकी लगी मिली। हमने कहा हमारी ये सोच है कि जैसे सुबह कल जुमा है, कल ही टंकी लग जाए, तो कहा कि सुभान अल्लाह, तुरंत अल्हम्दुलिल्लाह हजरत 20,000 रुपए तुरंत, वही 20,000, कोई 100, कोई 500, कोई 10, मतलब सब इकट्ठा हो गया, 20,000 रुपया उठा के इमाम साहब को दिया, हमने कहा सुबह टोपी टंकी सब लग जाएगा, लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ एक जगह पहुंचे, मस्जिद में ईटा गजा हुआ, उसी पर मुसल्ला डाल के इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, इतने तरक्की आपका दौर में तो मिंबर नहीं बनवा पाए। वो जलसा उस आदमी ने किया था जिसने
40 भैंस खरीदी। उसी खुशी में उसने जलसा किया था। तो हमने कहा जिंदगी में पहला जलसा मिला है जिसका मौजू हम नहीं बता सकते कि किस टॉपिक पे ये जलसा हो रहा है। भाई जश्न भैंस कहा जाए या भैंसी कॉन्फ्रेंस कहा जाए, क्या कहा जाए, तो समझ नहीं आ रहा था। तो हमने कहा यार भाई 40 भैंस खरीद के लाया, मिल्क डेयरी खोल रहा था, वो सब पूरा सिस्टम बनाया था। तो हमने कहा यार बड़ी खुशी की बात है, इतनी सब कुछ, लेकिन तुम्हारी मस्जिद में यार हम नमाज पढ़ के आए, मिंबर ही थे लगे हुए थे, मिंबर तक नसीब नहीं है, ये क्या मसला है। तो खैर उस आदमी ने कहा कि हजरत हम 20,000 रुपया देते। तो भैंस वाला था, 20,000 रुपया उसने दिया, बाकी और लोगों ने इकट्ठा किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पूरा सिस्टम का इंतजाम हो गया, आज इंतजाम है। ये कौम का मामला है यार, थोड़ी सी करवट बदले तो इंशाअल्लाह फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। कहते हैं ना कि 100 का जो मतलब एक दिन का इकट्ठा किया जाए तो एक का बोझ बन जाता है। तो अगर 100-150 रुपए, 500 रुपए अगर आप जो है मिल करके महीने का या जरूरत के वक्त आप अगर खर्च करें तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर काम भी होगा और हमारी नस्ल की बेटियां इंशाअल्लाह आलिमा फाजिला बन करके निकलेंगी तो इंशाअल्लाह हमारी औलादें भी दीन के इल्म से आरास्ता होगी। क्योंकि कोई आलिमा बेटी अपने बेटे को जाहिल करके चली जाए दुनिया से, ये कभी नहीं हो सकता। कोई भी आलिम बेटा अपने बेटे को जाहिल करके चला जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इल्म की शमा रोशन करो, अपनी नस्लों को उससे आबाद करो और ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो कौम के लिए काम करना चाहते हैं, हमारी नस्लों के लिए काम करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को इल्म दीन को अपनी नस्लों में दूर तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।